السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک، قسط نمبر 27۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ اہل بیت کے محبین اور شیعان علی کے نام اور ان پر ڈھائے گئے مظالم بیان کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ صلح حسن کی بنیادی شرط کس طرح توڑی گئی۔ شیعان علی پر مظالم کی مثالیں: حجر بن عدی الکندی اور ان کے ساتھی حضرت علی کے قریبی ساتھی اور کوفہ کے بڑے قائد تھے۔ معاویہ کے حکم پر ان کو گرفتار کیا گیا اور مرج عذرا یعنی دمشق کے قریب لے جا کر قتل کیا گیا۔ حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ حضرت علی کے ماننے والے اور ان کا دفاع کرتے تھے۔ طبری جلد 5 صفحہ 258، ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 487۔ رشید بجری یہ حضرت علی کے خاص شاگرد اور عوام کے حاملین میں سے تھے۔ زیاد بن ابی کے حکم پر ان کے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ دی گئی اور پھر شہید کر دیا گیا۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ 271۔ دینوری الاخبار الطوال صفحہ 222۔ میثم تمار حضرت علی کے بہت قریبی غلام اور شاگرد تھے۔ زیاد بن ابی نے انہیں گرفتار کر کے کھجور کے تنے پر لٹکا دیا اور برچھیوں سے چھید کر شہید کر دیا۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 6 صفحہ 244۔ بلازری انصاب الاشراف جلد 5 صفحہ 127۔ عمرو بن حمق خزائی حضرت علی کے وفادار صحابی تھے۔ معاویہ کے حکم پر ان کو گرفتار کیا گیا اور بالآخر قتل کر کے ان کا کٹا ہوا سر مصر کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلا سر تھا جسے اس طرح نمائش کے لیے گھمایا گیا۔ طبری جلد 5 صفحہ 259۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 488۔ حجر بن عدی کے ساتھ ہی تاریخ میں آتا ہے کہ حجر بن عدی کے ساتھ 12 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 6 کو شہید کر دیا گیا۔ ان سب کا جرم یہ تھا کہ وہ حضرت علی کے حق میں کھڑے ہوتے تھے۔ طبری جلد 5 صفحہ 258، الکامل جلد 3 صفحہ 487۔ یہ تمام واقعات اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ صلح حسن کی اس بنیادی شرط یعنی شیعان علی پر ظلم نہ کیا جائے کو سختی سے توڑا گیا۔ اہل بیت کے محبین اور حضرت علی کے شیعوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ اس ظلم کا ذمہ دار سب سے پہلے زیاد بن ابی تھا، جسے معاویہ نے کوفہ کا گورنر بنایا۔ حضرت حجر بن عدی کا پس منظر: حجر بن عدی صحابی رسول تھے اور قبیلہ کندہ کے معزز سردار تھے۔ جنگ صفین اور دیگر موقع پر حضرت علی کے ساتھ بہادری سے لڑے۔ کوفہ میں ان کی پہچان حضرت علی کے سچے ساتھی اور محب کے طور پر تھی۔ زیاد بن ابی اور ظلم کی ابتدا: جب معاویہ نے کوفہ اور بصرہ کا گورنر زیاد بن ابی کو بنایا تو اس نے اہل کوفہ کو سختی سے مجبور کیا کہ وہ خطبوں اور اجتماعات میں حضرت علی پر سب و شتم کریں۔ حجر بن عدی اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے اور وہ ہر بار مسجد میں کھڑے ہو کر حضرت علی کے فضائل بیان کرتے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے۔ طبری تاریخ امم والملوک جلد 5 صفحہ 258۔ گرفتاری اور دمشق روانگی: زیاد بن ابی نے حجرے اور ان کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا اور دمشق کے معاویہ کے دربار میں بھیج دیا۔ راستے میں ان پر سختیاں کی گئی، کھانے پینے میں کمی کی گئی اور انہیں بار بار حضرت علی پر لعنت کرنے پر مجبور کیا گیا، مگر انہوں نے انکار کیا۔ حوالہ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 487۔ معاویہ کا فیصلہ اور شہادت: دمشق کے پہنچنے کے بعد بھی جب حجر بن عدی اور ان کے ساتھی حضرت علی پر لعنت کرنے پر تیار نہ ہوئے تو معاویہ نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ مرج عذرا کے مقام پر حضرت حجر بن عدی اور ان کے 6 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حجر نے قتل سے پہلے نماز کی اجازت مانگی۔ جلاد نے کہا جلدی کرو۔ حجر نے جواب دیا اگر تم مجھ پر گمان نہ کرو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میں نماز کو لمبا کرتا۔ یہ الفاظ ان کی استقامت کی روشن مثال ہیں۔ حوالہ دینوری الاخبار الطوال صفحہ 222۔ شہادت کی یادگار: حضرت حجر بن عدی کی شہادت کو تاریخ نے ایک سیاہ باب قرار دیا ہے۔ امام حسن بصری نے فرمایا اگر مسلمانوں میں کوئی شخص شہید بالظلم ہے تو وہ حجر بن عدی ہیں۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ 271۔ حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کا قتل صلح حسن کی سب سے بڑی خلاف ورزی تھی۔ شرط یہ تھی کہ حضرت علی کے شیعوں پر ظلم نہیں ہوگا، مگر انہیں سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ حضرت علی کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ تاریخ میں حضرت حجر بن عدی کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا وہ دراصل سیاسی انتقام اور صلح حسن کی شرط کی کھلی خلاف ورزی تھی۔
आइए ये पूरा वाक़या तरतीब से बयान करते हैं। हज़रत हुजर बिन अदी का कसूर, वो हज़रत अली के जलीलुल कद्र सहाबी और वफादार साथी थे। कूफा के बड़े इज्तिमात में जब गवर्नर ज़ियाद बिन अबी हज़रत अली पर सब व सितम करवाता था तो हुजरे खड़े होकर एहतजाज करते और हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान करते। हुजरे और उनके साथियों ने कहा, हम ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो मिंबरों पर हज़रत अली को गालियां दे। इब्ने असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 487। इसी जराते इजहार को उनका सबसे बड़ा जुर्म करार दिया गया। मुकदमा कैसे बनाया गया? ज़ैद बिन अबी ने उनके खिलाफ मुकदमा तैयार किया और अहले कूफा के चंद लोगों से जबरदस्ती शहादतें लिखवाईं। उन शहादतों में दर्ज था कि हुजर बिन अदी और उनके साथी हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाते हैं। वो लोगों को अमीरुल मोमिनीन मुआविया की इताअत से रोकते हैं। वो मस्जिद में फितना फैलाते हैं और बदनज़मी का बाइस बनते हैं। तबरी तारीख़ उम्म वल मुलूक जिल्द 5 सफ़ा 258। किन लोगों की शहादत ली गई? ज़ियाद ने कोफा के चंद कमजोर या हुकूमती दबाव में आए हुए अफराद को गवाही देने पर मजबूर किया। उन शहादतों पर अबू बुर्दा बिन अबी मूसा अशरी और कुछ काजियों के दस्तखत भी करवाए ताकि उसे कानूनी शक्ल दी जा सके। इस मुकदमे को दिमश्क भेजा गया ताकि मुआविया को इत्मीनान हो के उनको कत्ल करना बगावत के बदले में जायज़ है। इब्ने सात तबकातुल कुबरा जिल्द 6 सफ़ा 221। दिमश्क में क्या हुआ? जब हज़रत हुजर बिन अदी और उनके साथियों को दिमश्क लाया गया तो उनके सामने ये इल्जामात रखे गए। उनसे कहा गया कि हज़रत अली से अपनी मोहब्बत का ऐलान न करो और उन पर लानत करो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत हुजरे और उनके साथियों ने कहा, हम हज़रत अली के दुश्मन नहीं बन सकते। ये पूरा मुकदमा सिर्फ एक सियासी साजिश था। हज़रत हुजर बिन अदी का कसूर सिर्फ ये था कि वह हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान करते थे और गवर्नरों के मिंबरों पर सब व सितम के हुक्म को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनकी बगावत की दलील सिर्फ इतनी थी कि वो जुल्म के सामने खामोश न रहे। इमाम इब्ने अबिल हदीद लिखते हैं, हुजर बिन अदी और उनके साथियों का सबसे बड़ा जुर्म सिर्फ ये था कि वो हज़रत अली से मोहब्बत करते थे। शरह नहजुल बलागा जिल्द 2 सफ़ा 271। हज़रत हुजर बिन अदी और उनके साथियों की शहादत इस्लामी तारीख का एक निहायत दर्दनाक बाब है। आइए उनके आखिरी कलमात और वसीयत देखते हैं। हज़रत हुजर बिन अदी के आखिरी कलमात, जब उनको कत्लेगाह यानी मर्ज अज़रक जो दिमश्क के करीब है ले जाया गया तो उनसे कहा गया, तुम्हें कत्ले नहीं किया जाएगा अगर तुम हज़रत अली को बुरा कहो। हज़रत हुजरे ने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, मैं अली के बारे में कभी बुराई नहीं कह सकता। वो मेरा इमाम और मेरा रहनुमा है। इब्ने असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 487। उन्होंने अपने कातिलों से कहा, मुझे किबला की तरफ मत झुकाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा कत्ल अल्लाह के लिए गवाही बने। तबरी तारीख़ उम्म वल बुलूग जिल्द 5 सफ़ा 258। जब उनके बेटे को भी साथ लाया गया और कहा गया कि इसे भी कत्ल किया जाए तो हुजरे ने फरमाया, पहले मेरे बेटे को कत्ल कर दो ताकि वो मेरी शहादत का मंजर न देखे, मेरा हौसला टूट न जाए। इब्ने सात तबकातुल कुबरा जिल्द 6 सफ़ा 221। वसीयत, कत्ल से पहले हज़रत हुजरे ने कहा, हमें सिर्फ इस जुर्म की सजा दी जा रही है कि हमने हज़रत अली की मोहब्बत और विलायत को इख्तियार किया। ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना कि हमने कभी तेरी इताअत को तर्क नहीं किया और तेरे नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ा। इब्ने अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा जिल्द 2 सफ़ा 271। हुजर बिन अदी ने अपनी जान कुर्बान कर दी मगर हज़रत अली की विलायत से दस्तबरदार न हुए। उनकी शहादत इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि हज़रत हसन की शर्त शियान अली पर जुल्म नहीं होगा खुलेआम तोड़ दी गई। हुजर बिन अदी और उनके साथियों की शहादत पर सहाबा व ताबईन का रद्द अमल बहुत शदीद था। यह रद्द अमल तारीख की किताबों में महफूज है और इससे साफ जाहिर होता है कि इस इक़दाम को उम्मत के बड़े उलमा व सहाबा ने निहायत बुरा जाना। सहाबा व ताबईन का रद्द अमल। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन, जब खबर पहुंची कि हुजर बिन अदी और उनके साथियों को कत्ल कर दिया गया है तो आप सख्त बरहम हुई। आपने मुआविया को पैगाम भेजा, क्या हुजरे और उनके साथियों को कत्ल करके तुमने अली के मानने वालों की तादाद कम कर दी है? अल्लाह की कसम, हुजरे और उनके साथी ऐसे थे जो रातों को क़याम करते थे, दिन को रोजे रखते थे, दुनिया से बेरगबत और दीन के पाबंद थे। इब्ने असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 487। हज़रत अबू सईद खुदरी, उन्होंने फरमाया, हुजरे और उनके साथियों की शहादत ऐसी मुसीबत है कि अगर पहाड़ों पर डाली जाए तो वो भी पिघल जाएं। इब्ने अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा जिल्द 2 सफ़ा 272। मदीना के दीगर सहाबा
मदीना में बड़े पैमाने पर गम व गुस्सा फैल गया। ताबईन और अहले इल्म कहते थे ये इस्लाम में पहला मौका है जब किसी को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि वो अली से मोहब्बत रखता है। तबरी तारीख उम्म वल मुलूक जिल्द 5 सफ़ा 259। हजरत हुसैन का रद्द अमल। इमाम हुसैन ने शदीद एहतजाज किया और फरमाया, हुजरे और उनके साथियों को कत्ल करके तुमने मुसलमानों के खून से अपने दामन को दागदार किया है। इब्ने सादा तबकातुल कुबरा जिल्द 6 सफ़ा 222। हजरत हुजरे बिन अदी की शहादत को सहाबा व ताबईन ने इस्लामी तारीख का जुल्म अजीम करार दिया। ये सुलह हसन की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी थी कि जिसमें वाज़ेह शर्त थी कि शियान अली पर जुल्म नहीं होगा। तारीखी और हदीसी शवाहिद ये बताते हैं कि हुजर बिन अदी और उनके साथियों का कत्ल महज एक सियासी मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुल्म था जिस पर बड़े बड़े साहबा ने सख्त नकीर की, और जुल्म के बारे में कुरान और सुन्नत की वईद बिल्कुल वाज़ेह है। कुरान की दलील, अल्लाह ताला ने फरमाया, जालिम जल्द जान लेंगे कि वो किस अंजाम को पलटाए जाते हैं। सूरह शुरा आयत नंबर 227। और हर जालिम पर लागू होती है, लिहाजा अगर हुजर बिन अदी जैसे मुत्तकी सहाबी को नाहक कत्ल किया गया तो इस जुल्म की गिरफ्त आखिरत में यकीनी है। हदीस की दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, बेशक जुल्म क़यामत के दिन तारीकिया बन जाएगा। सही मुस्लिम 2578। यहाँ जुल्म से सबसे बड़े मुजाहिर में एक नाहक खून बहाना है जिस पर कुरान में सख्त वईद आई है। सूरह माइदा आयत नंबर 32। जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। सहाबा की गवाही, हजरत आयशा ने फरमाया कि हुजरे और उनके साथी रातों के क़याम करने वाले और दिन के रोज़ा रखने वाले थे और वो मुत्तकी लोग थे। अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 487। यानी उनका कत्ल सिर्फ और सिर्फ जुल्म और ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। दलील की बुनियाद पर यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि हुजर बिन अदी और उनके साथियों का कत्ल जुल्म अजीम था, सुलह हसन की शराइत की खुली खिलाफ वर्जी थी और जुल्म के बारे में कुरान और सुन्नत के मुताबिक आखिरत में सख्त हिसाब और पकड़ यकीनी है। आइए अब हम हजरत मुआविया के अमाल के बारे में मुहद्दिसीन और मुर्रखीन का तज्ज़िया देखते हैं, खास तौर पर हुजर बिन अदी और दीगर शियाने अली पर जुल्म के पस मंजर में। मुहद्दिसीन और उलमा की राय, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी मुतवफ़ा 852 हिजरी, उन्होंने अल-असाबा फी तमीज़ुस सहाबा में हुजर बिन अदी का जिक्र करते हुए लिखा, जिल्द 2 सफ़ा 57। हुजर बिन अदी फजीलत वाले साहबी थे, इबादत गुजार और जाहिद थे और उनको मुआविया ने जुल्म के साथ कत्ल किया। इमाम अब्दुल बर मुतवफ़ा 463 हिजरी, अल-इस्तियाब जिल्द 1 सफ़ा 393। हुजर बिन अदी को जुल्म और ज़्यादती के साथ कत्ल किया गया। इमाम ज़हबी 748 हिजरी, सीर आलमुन नबला जिल्द 4 सफ़ा 287। हुजर बड़े इबादत गुजार थे, उनको मुआविया ने अपने साथियों समेत सन 51 हिजरी में कत्ल किया। मुर्रखीन की राय, तबरी 310 हिजरी, उन्होंने तफसील से जिक्र किया कि हुजर बिन अदी पर मुकदमा गढ़ा गया और मुख्तलिफ झूठे गवाह पेश किए गए, फिर उन्हें गिरफ्तार करके कत्ल किया गया। तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 258 से 261 तक। इब्ने असीस 630 हिजरी, अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 487। हुजर बिन अदी का कत्ल मुआविया के बदतरीन आमाल में से था। सबत इब्न जौजी 654 हिजरी, मरातुल ज़मान जिल्द 7 सफ़ा 13। हुजरे को इसलिए कत्ल किया गया कि वो अली से मोहब्बत करते और उनके फ़ज़ाइल बयान करते थे, जो मुआविया की ख्वाहिश के खिलाफ था। मजमूई तज्ज़िया, तमाम मुअत्तर मुहद्दिसीन और मुर्रखीन मुत्तफ़िक़ हैं कि हुजर बिन अदी का कत्ल नाहक जुल्म और ज़्यादती था। ये वाक़या सुलह हसन की एक अहम शर्त की खुली खिलाफ वर्जी थी कि शियाने अली पर जुल्म नहीं किया जाएगा। उलमा ने वाज़ेह किया कि ये अमल मुआविया के दामन पर एक स्याह धब्बा है और आखिरत में इस पर सख्त हिसाब होगा। इससे ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि हज़रत अली और उनके शिया यानी मुहिब्बीन हक पर थे और जो उन पर जुल्म ढाते थे उनके बारे में कुरान और सुन्नत की वईद और उलमा व मुर्रखीन की सख्त राय मौजूद है। गिरफ्तारी का पस मंजर, हुजर बिन अदी हज़रत अली के वफादार साहबी और शियाने अली के रहनुमा थे। वो कूफा की जामे मस्जिद में हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान करते और जब मरवान या ज़ियाद के मुकर्रिरीन हज़रत अली को बुरा कहते तो हुजरे खड़े होकर एहतजाज करते। इस पर गवर्नर ज़ियाद बिन अबी ने उन पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें गिरफ्तार करके दिमश्क यानी मुआविया के दरबार भेज दिया। तारीख़ तबरी जिल्द 5 सफ़ा 259। गवाहियाँ और मुकदमा, ज़ियाद ने उनके खिलाफ झूठी गवाहियाँ जमा की। गवाहों में से बाज़ के नाम तारीख में महफूज हैं, जैसे सबस बिन रबी जो बाद में करबला में भी बदनाम हुआ और अम्र बिन हरीस वगैरह। उन गवाहों ने कहा
हुज्र बिन अदी हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत करते हैं और अली की मोहब्बत का खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं। तारीख दिमश्क जिल्द 13 सफ़ा 272। हकीकत ये थी कि उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वह हजरत अली की फजीलत बयान करते थे और सब व शितम बर्दाश्त नहीं करते थे। मुआविया के दरबार में पेशी जब उन्हें दिमश्क लाया गया तो हुज्र बिन अदी ने साफ कहा, हमारी शहादत है कि अली हक पर थे और जो उनके दुश्मन हैं वो बातिल पर हैं। अल-इस्तियाब जिल्द 1 सफ़ा 394। ये बात मुआविया के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। कत्ल का फैसला मुआविया ने अपने साथियों से मशवरा किया। बाज ने कहा कि हुज्र को छोड़ दिया जाए, लेकिन मरवान और अम्र बिन आस जैसे लोग कत्ल पर इसरार करते रहे। आखिरकार मुआविया ने कत्ल का हुक्म दे दिया। हुज्र बिन अदी और उनके साथियों की शहादत। उन्हें मर्ज अजरा यानी दिमश्क के करीब एक जगह ले जाया गया। हुज्र बिन अदी ने कहा, मुझे कैद कर दो, लेकिन मेरे कत्ल से अपने हाथ न रंगो, क्योंकि मैं पहली उम्मत का पहला मुसलमान हूँ जिसे नमाज छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अल-कामिल फिर तारीख जिल्द 3 सफ़ा 487। मगर फिर भी कत्ल कर दिया गया। उनके साथ तकरीबन 6 या 7 असाब भी शहीद किए गए। उलमा की राय, इमाम इब्न अब्दुल बर, हुज्र को कत्ल करना जुल्म और ज्यादती थी। इमाम ज़हबी, ये मुआविया के सबसे बड़े जराइम में से था। इब्न जौजी, ये सुलह हसन की खुली खिलाफ वर्जी थी। खुलासा ये कि हुज्र बिन अदी और उनके साथियों का कसूर सिर्फ ये था कि वो अली की मोहब्बत में डटे हुए थे और यही उनकी शहादत का सबब बना। ये वाक़या तारीख़ इस्लाम में बनी उमैया के सख्त गिरी और वादा खिलाफी की सबसे बड़ी मिसाल है। हजरत आयशा का रद्द अमल। जब हुज्र बिन अदी और उनके साथी कत्ल कर दिए गए तो खबर हजरत आयशा तक पहुंची। उन्होंने सख्त गुस्से में कहा, ऐ मुआविया, तुमने हुज्र और उसके साथियों को कत्ल करके जुल्म किया। हुज्र एक आबिद व जाहिद और नमाज गुजार शख्स था, तुम्हें क्या हक था कि उसे कत्ल करो। तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 260। तारीख दिमश्क जिल्द 13 सफ़ा 273। मुआविया का जवाब कटहुज्जती वाला। मुआविया ने जवाब में तावील करते हुए कहा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, मैंने उन्हें इसलिए कत्ल किया था क्योंकि उन्होंने मेरी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी और लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो फितना बढ़ता। फिर इससे भी ज्यादा सख्त बात कही, ऐ उम्मुल मोमिनीन, अगर मैं हुज्र को माफ कर देता तो मेरी हुकूमत कायम न रहती। मरातुज़्ज़मान इब्न जौजी जिल्द 7 सफ़ा 11। अल-कामिल इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 487। यानी हजरत आयशा ने साफ कहा कि हुज्र का कत्ल जुल्म है, मगर मुआविया ने उसे हुकूमत बचाने का जवाज बनाकर पेश किया। यही वो कटहुज्जती थी जिस पर अक्सर मुर्रखीन और मुहद्दिसीन ने कहा कि मुआविया का ये उज़्र बातिल है, क्योंकि सुलह हसन की शर्त यही थी कि शियाने अली पर कोई जुल्म न होगा, लेकिन सबसे पहले इसी शर्त की खिलाफ वर्जी हुई।